Ma'am, I cannot hear you. Who is it? 1 second. किसे नहीं आ रही आवाज? Now I can hear you. Now I can hear you. Yeah. Okay, okay. All right. So shall we start now? Is everyone here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Complete the Socrative for nutrition in plants. How was it? Did you find anything difficult? There was a Socrates when? I think the Socrative was posted now. Nutrition in plants के लिए. On acha, that one. Yeah. Okay, got it. Actually, there in a long period of time, no Socrates are posted right now. So that's why I was confused. What about the others? Am I audible? Yeah, you clearly Yes, audible. ma'am. You're audible. And plus, there were no doubts actually. So yeah. Okay, so Janvi is asking that will there be a written test tomorrow? Janvi, as for the written test, Deepak sir is the concerned person. वो बताएंगे आपको टेस्ट के बारे में, ठीक है? मैम क्योंकि शेड्यूल में लिखा था. हाँ, स्केड्यूल में था, आई रिमेम्बर. अगर स्केड्यूल में है तो आई थिंक प्रोबेबली टेस्ट होगा. ओके, बट यू विल बी टोल्ड अबाउट इट, डोंट वरी. Okay, fine. Ma'am, this one we have discussed earlier. We discussed a few questions, I remember, but उसके Yes. बाद फिर हम रुक गए थे क्योंकि हमने न्यूट्रिशन एंड प्लान्स नहीं किया था ना. So that is why I'm thinking of discussing it a little bit. Right? Okay. So Shubham, tell me which of the following is a modified stem in 10th question? मैम आई एम विश्रुत. मैम मैंने गलती से भाई का नाम डाल दिया अपने. अच्छा, तभी मैं सोच रही थी. चलो कोई बात नहीं, छोके. हाँ विश्रुत, so you tell me the answer. मैम व्हाट इज अ मॉडिफाइड स्टेम? Which is a modified stem. Okay, ma'am. Garlic, pepper, ginger. Ma'am, all of these. Good. The answer is all of these. Garlic भी एक modified stem है, potato भी और ginger भी. ठीक है? विश्रुत, आप तो 6th क्लास में हो ना? Yes, ma'am, मैं 6th क्लास में हूँ. तो this is 7th class going on. ये 7th की क्लास चल रही है, पता है ना? 6th क्लास में हूँ. मैम. हाँ बोलो. मैम कि आज तो मैथ्स का टेस्ट था ना? देखो, मुझे टेस्ट के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट राइट नाउ द क्लास फॉर 7th इज गोइंग ऑन. ठीक है? ओके मैम. Okay, Janvi, you tell me what is the garlic called as? Last time I think जब हमने डिस्कस किया तो मैंने आपको बताया भी होगा कि these modified stems have a name also. तो garlic को क्या बोलते हैं, remember? मैम शायद से बल्ब. Very good. बल्ब बोलते हैं. Ma'am, that day I did not write there like क्या बोलते हैं कि वो क्या होते हैं, लेकिन what category दिखा. So हाँ, मैं आज वही कह रही हूँ कि उस वक्त नहीं दिख रहा था, तो आज आप मुझे बता दो तो मैं लिख लेती हूँ. हाँ, डोंट वरी, हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लिख सकते हो साथ में. ठीक है? नमित, what is potato called as?
Ma'am, potato is called as tuber. Very good. So potato is called as tuber. ठीक है. And then the next one ginger. इसका मुझे बताएगी अवनी. अवनी, what is ginger called as? Ma'am, can you hear me? हाँ जी. Ma'am, can you hear me? क्या बोल रहे हो अवनी? Ma'am, can you hear me? Yes, yes, I can hear you. बोलो बोलो, आंसर बताओ. Okay, ma'am. Ma'am, the answer is Is Avni speaking? I cannot hear her. अवनी, आप कुछ कह रहे हो, बोल रहे हो आप? हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है. Ma'am, she has left the class. Ma'am, is mine correct, ma'am? Namit, I have sent in the chat box. Yes, yes, I am reading the answers in the chat box. Chalo, anyway, she's still in the meeting. I don't know. Chalo, anyway. So Sanemi has given the answer. Namit also. Yes, so it's called as rhizome. ठीक है, इसे हम राइजोम कहते हैं. Then onion is also like garlic. Onion is also a bulb, so it will be a modified stem. ठीक है. Yes. इसका आंसर मुझे कौन बताएगा? 13th question. हाँ तारुष, you tell me the answer for the 13th question. Good evening, ma'am. हाँ बताओ. Good evening. The answer for the 13th one. Ma'am, I think the answer would be modified fruit. Okay. What about the others? Ma'am, I think it will be modified vegetable or bonicial vegetable. Okay. Sanemi? Ma'am, botanical fruit. So, Sanemi says Ma'am, can botanical. ma'am answer? हाँ, Ma'am, बताओ. Namit. Ma'am, Yes, I answer. think the answer is modified fruit. Ma'am, may I answer, Radhya? One second. अभी किसने आंसर दिया है पहले? Ma'am, Namit, ma'am, modified fruit. Okay. हाँ राध्या, आप बताओ. Ma'am, I guess botanical vegetable. आंसर हियर विल बी बोटानिकल फ्रूट. ठीक है, तो सनेमी ने सही आंसर दिया था. देखो, जो पंपकिन है, क्यूकम्बर है, लेडी फिंगर्स, टोमेटो, ये सब क्या होते हैं? ये सब फ्रूट होते हैं. ठीक है, दीज आर द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट, बट यू ईट देम एज वेजिटेबल्स. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? बोटानिकली. बोटानिकली मतलब अगर हम साइंटिफिकली देखें, क्योंकि देखो बॉटनी इज द साइंस ऑफ प्लांट्स. ठीक है, जब हम प्लांट्स की पढ़ाई करते हैं उसे हम बोलते हैं बॉटनी. तो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है बोटानिकल. ठीक है, तो बोटानिकली इज अ फ्रूट. क्लियर है ये बात? Yes. क्लियर है? चलो गुड. देन नेक्स्ट, कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली. अब ये तो बहुत ही इजी है, दिखने में ही दीज आर लाइक फ्लावर्स. ओके, सो बोटानिकली भी क्या है? ये फ्लावर्स है प्लांट के. अंडरस्टूड? Ma'am, what is the meaning of Yes, ma'am. botanical? Yeah, that's what I was gonna ask too. Okay, the meaning of botanical is, see, the science of plants या फिर साइंस और स्टडी ऑफ प्लांट्स इज बॉटनी. ठीक है, तो जब भी मुझे बताना है कि ये चीज साइंटिफिकली क्या है, ओके, इफ आई वांट टू टेल यू कि साइंटिफिकली अगर मैं देखूं तो ये पार्ट फ्लावर है. ओके, तो मैं वर्ड यूज करूंगी बोटानिकल. अंडरस्टूड? आई विल से दिस इज द बोटानिकल फ्लावर और द बोटानिकल. ओके, आप चाहो तो ये चीज नोट कर सकते हो.
Science of study of plants is botany. Similarly, science or study of animals is called zoology. Okay, so see, Janvi has a good question. She is asking that can carrots and radishes be called as botanical vegetables? No. ठीक है, botanical vegetable जो है ना, ये कोई टर्म ही नहीं है. vegetable जो वर्ड है वो हमने बनाया. ठीक है, whatever you know part of the plant we are eating you know by mixing it with salt. ठीक है, जब हम उसको एक सेवरी डिश की फॉर्म में खाते हैं तो हम उसको वेजिटेबल बोल देते हैं. बट अगर आप प्लांट्स में देखो तो प्लांट्स में वेजिटेबल जैसा कोई पार्ट नहीं है. प्लांट्स जस्ट हैव लीव्स, रूट्स, स्टेम एंड फ्लावर एंड फ्रूट. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, जब भी आप ऑप्शन देखो तो सही वाले ऑप्शन कौन से होते हैं? बोटानिकल लीफ, botanical root, botanical stem, botanical flower and botanical fruit. ये टर्म्स जो है ये सही टर्म्स है. ठीक है, यही यू नो मीनिंगफुल टर्म्स है. इसके अलावा बोटानिकल वेजिटेबल कुछ नहीं होता. ठीक है, सिर्फ वेजिटेबल कहेंगे तो फिर भी ठीक है, लेकिन बोटानिकल वेजिटेबल इज you know does not have any meaning. Like just like botanical fruits, vegetables, there's is there a such thing called as botanical leaf too? yes, बोटानिकल लीफ का मतलब है कि ये बोटानिकली जो है फ्लावर प्लांट का लीफ है. जैसे जब आप स्पिनच खाते हो, ठीक है, स्पिनच मतलब पालक वगैरह, तो आप क्या खा रहे हो उसमें? यू आर ईटिंग द बोटानिकल लीव्स ऑफ द प्लांट, राइट? Then in that case, then to lettuce, spinach and many other cabbages like stuff, they are botanical leaves. They can be categorized under those. Yes. Okay, fine. Okay, so if you have to name scientifically, आप सबको one second Amit, one second, let me complete. So अगर आपको उन्हें scientifically name करना हो तो आप उन्हें botanical leaves कहोगे. ठीक है, हाँ नमित बताओ. Ma'am, what you have written after the study of plants? After Ma'am, study I of can't plants, understand the spelling. the second one. No, ma'am, the first one. Botany. Science of study of plants is botany. BOTANY. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Janvi, do you have a question? यस मैम. कड़ी पत्ता भी जो है, कड़ी पत्ता, करी लीव, वो भी बोटानिकल लीफ होती है. Yes, they are also botanical leaves. ठीक है. ओके मैम, थैंक यू मैम. ओके, अब मुझे ये बताओ कि ये पल्सेस जो होती हैं, बीन्स वगैरह, व्हाट आर दीज? आई विल आस्क समबडी. ओके, वन सेकेंड. चलो, इसका आंसर हमें विदेश बताएगा. Ma'am, what is the question? The question is कि जो pulses होते हैं या कॉफी सीड्स, कॉफी बीन्स होती हैं, राइस है, कॉर्न है, आमंड्स है, ये सब क्या है? ऑप्शंस ये रहे सामने. ठीक है, विदेश, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर. Oh, okay. I thought you were just asking a trick question. I'll just say my answer again. ओके राधा. विदेश, एक बार ध्यान से देखो, ठीक है, और फिर मुझे आंसर बताना. ये क्या चीज है? देखो, ये जब राजमा खाते हो, दाल खाते हो, पल्सेस वगैरह या आमंड्स खाते हो, व्हाट आर दीज? आर दीज सीड, स्टेम, लीव्स, फ्रूट या फ्लावर? वेरी गुड. सो विदेश हैज गिवन द करेक्ट आंसर. दीज आर द सीड्स. ठीक है, और भी बाकी बच्चे जो आंसर दे रहे थे, यू पीपल आर राइट. नमित, ये रूट्स नहीं है. ठीक है, देखो ये सीड्स होते हैं ना. अब देखो, सबसे कॉमन एग्जाम्पल, जब कभी भूल जाओ या कंफ्यूजन हो ना, तो ऐसे याद रखना कि अगर आप कभी राजमा को ले जाकर मिट्टी में लगाते हो तो उसमें से प्लांट निकल आता है ना, है ना? तो Yes, प्लांट ma'am. निकलता है सीड में से. इसका मतलब राजमा क्या है? वो सीड है.
सिमिलरली ये जितने भी पल्सेस है, दाल है, ये सब सीड्स हैं, ठीक है। सेम थिंग हैपेंस विद व्हीट ऑल्सो। कभी आपने व्हीट का प्लांट उगाया? Ma'am, I have grown. No, ma'am. No, okay, No, okay. I haven't. So, you know, when I was little, I think in 4th or 5th class, तो मुझे हॉलीडे होमवर्क मिला था स्कूल से। उसमें मुझे क्या करना था, हाँ, I was in 6th class, ठीक है। तो उसमें मुझे क्या करना था, मुझे इन सब प्लांट्स की रूट्स के बारे में बताना था, ठीक है। आई हैड टू टेल कि इनकी रूट्स फाइब्रस होती है या फिर टैप रूट होती है। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने ये सारे प्लांट्स घर में ग्रो करे, व्हीट भी ग्रो किया, राजमा भी, पीस भी, बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करे थे। और राइस का मतलब आई कुड नॉट ग्रो राइस इन माय हाउस बिकॉज उसको बहुत सारा वाटर चाहिए होता है, तो वो फिर मेरे पापा लेके आए थे फ्रॉम पूसा। सो यू नो a lot of my classmates could not get these plants क्योंकि उन्होंने ऐसे ग्रो नहीं किया। बट सिर्फ मेरा हॉलीडे होमवर्क बहुत अच्छा था क्योंकि मैं ग्रो करती थी घर में, ठीक है। तो आप अगर देखोगे ना तो वीट भी ग्रो हो जाता है घर में, छोटा सा प्लांट निकल आएगा, ऐसे नहीं कि वो पूरा खेतों की Ma'am, तरह। I have grown. यस, ठीक है। सो दीज आर ऑल सीड्स, इसीलिए इनमें से नया प्लांट आता है। चलो, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑयल सीड, ठीक है। इसका आंसर मुझे नमित बताएगा, इनमें से कौन से वाला ऑयल सीड नहीं है, ठीक है। Ma'am, I think that is wheat. वेरी गुड, इट्स व्हीट, ठीक है। व्हीट के सीड्स को आप क्रश करोगे तो ऑयल नहीं निकलता, क्या निकलता है? व्हीट फ्लावर निकलता है। फ्लोर। यस यस, राधिया लेट मी स्पीक, ओके। व्हीट फ्लावर निकलता है जिसको आप क्या करते हो, यूज करके यू मेक चपातीज एंड यू नो यू यूज इट फॉर अदर पर्पसेस आल्सो। Okay, then what is common between the mustard, rapeseed, peanut and sunflower seed? इन सब के बीच में कॉमन क्या है? पहला ऑप्शन कहता है कि ये सारे ऑयल सीड्स हैं, सेकंड है कि ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, थर्ड इज दैट दे ऑल बिलोंग टू द सेम प्लांट। ये तो ऑप्शन ही गलत है ना, क्योंकि मस्टर्ड अलग प्लांट पे है, रेपसीड अलग, पीनट एंड सनफ्लावर, दीज आर ऑल सेपरेट सीड्स फ्रॉम सेपरेट प्लांट्स। ओके, एंड द फोर्थ वन इज they are all cultivated in same weather and soil condition, ठीक है, कि ये सारे जो है एक ही वेदर में या सेम से वेदर में, सेम सॉइल कंडीशन में ग्रो करते हैं। सो व्हिच वुड बी द करेक्ट वन? विदेश, आप बताओगे? जल्दी से बता दो। कोई बात नहीं, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ तो आएगा ना, कुछ तो आंसर आएगा दिमाग में, वही बता दो, नो प्रॉब्लम। ओके, सो दीज आर ऑल ऑयल सीड्स, ठीक है। ये सारे जो हैं ये ऑयल सीड्स हैं, इनके अंदर से ऑयल निकलता है जब हम इन्हें क्रश करेंगे तो, ठीक है। देखो, मस्टर्ड ऑयल होता है ना, जिसे सरसों का तेल बोलते हैं हिंदी में, रेप सीड ऑयल भी होता है, इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग, पीनट एंड सनफ्लावर ऑयल जो आप घर में भी यूज करते हो, फॉर्च्यून या फिर रिफाइंड वगैरह जो आप यूज करते हो, ठीक है। Okay, now what is potato? Is it a modified root or a modified stem? Janvi? Modified. हाँ, very good. So potato is a modified stem. हमने अभी ऊपर देखा भी था. It is called as, what is it called as, Radhya? Ma'am, the potato is known as a tuber. Very good. So the modified stem potato is called as a tuber. Okay. Now pulses are rich sources of Namit. Ma'am, the answer is proteins. So pulses are rich sources of protein. इसीलिए आपको बोलते हैं कि प्रोटीन्स या पल्सेस खाओ ज्यादा से ज्यादा, ओके, बिकॉज यू पीपल आर इन एन एज जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है। जितना ज्यादा प्रोटीन खाओगे उतने ही बड़े होगे जल्दी जल्दी।
Okay, then this one. Ultimate source of energy required by living organisms is Avni. वेरी गुड. सो इट्स दी सोलर एनर्जी. ठीक है, अल्टीमेटली जितनी भी एनर्जी हमारे पूरे फूड चेन के अंदर है, दैट इज ऑल कमिंग फ्रॉम दी सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी से आ रही है. Ma'am, you give this question in the revision also. यस, टेस्ट में भी क्वेश्चन था, आई रिमेम्बर. Okay, during photosynthesis, green plants prepare food using solar light, carbon dioxide, water, and जानवी. Yes, ma'am. हाँ जी, आंसर बताओ. Ma'am, chlorophyll. Chlorophyll. And what is chlorophyll? Can somebody tell me? Ma'am, can I tell? हाँ बताओ राधिया. Ma'am, I'm Tarush. अच्छा हाँ तारुष बताओ. Ma'am, chlorophyll is a green pigment present in leaves which help in the process of photosynthesis. हाँ, It's a very kind of good. So sunlight. It basically, traps sunlight. हाँ वेरी गुड वेरी गुड. तो जो क्लोरोफिल है वो एक पिगमेंट है. ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू इन द क्वेश्चन कि क्लोरोफिल है क्या. आप कहोगे कि मैम इट इज अ पिगमेंट. ठीक है, पिगमेंट का मतलब होता है अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स कलर. ओके एवरीबॉडी, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि अ पिगमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड्स कलर. तो क्लोरोफिल जो है वो एक पिगमेंट है. ठीक है, और क्या प्लांट्स के अंदर सिर्फ क्लोरोफिल ही होता है? Are there any other pigments present in the plant? Tell me yes or no. Ma'am, what were you saying? Can you please repeat? I'm asking that are there any other pigments present in the plant also? Green chlorophyll के अलावा कोई और pigments होते हैं? No, Ma'am, I ma'am. think no. Ma'am, I think that is a no. Okay. So how many of you say no? Raise your hands. Okay. Tarush says no. Avni also says no. Sanemi also says no. Ma'am, Namit also. Namit also says no. Yes, Namit also says no. Janvi, Radhya and Vidyesh say yes. तो चलो मानते हैं कि तारुष, अवनी, सनेमी, नमित वाली टीम है टीम ए और बाकी बच्चों की टीम बी. सो टीम बी हैज वन. ठीक है, प्लांट के अंदर और जो पिगमेंट्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं. अब फ्रूट्स को देखो, फ्लावर्स को देखो, उनका कलर कहाँ से आ रहा है? ठीक है ना, दैट इज अ डिफरेंट कलर. तो दैट मीन्स कि प्लांट्स के अंदर और भी पिगमेंट्स अवेलेबल है. ठीक है, इसीलिए प्लांट्स का कलर अलग होता है, फ्लावर्स का कलर अलग होता है, फ्रूट्स का कलर अलग होता है. ओके, Ma'am, can you please tell what are the pigments? asking about pigments. Namit, were you saying something? Yes, ma'am. Ma'am, I am saying that. Ma'am, can you please tell us about that pigments? Ma'am, the name. Yes, yes. So see, there are pigments such as carotenoids, xanthophylls. ठीक है, ये अलग अलग कुछ तरह के पिगमेंट्स है. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं, ये आपके प्लांट्स के अंदर येलो, ऑरेंज और रेड कलर प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर. जो xanthophylls होते हैं, वन सेकेंड, जो xanthophylls होते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग लाइटर शेड्स ऑफ ग्रीन, सम शेड्स ऑफ ब्लू. ओके, तो ब्लू और ग्रीन जो अलग अलग शेड्स हैं वो xanthophylls से आते हैं. राइट? हाँ अवनी बताओ. Ma'am Radhya, ma'am, I wanted to ask that जैसे I also stated in our last class कि like जो थोड़े बहुत मनी plants होते हैं उनमें like white stripe type of कुछ होते हैं. So is that a pigment as well? Yes, yes. Okay, fine. जानवी, आपने हैंड रेज किया हुआ है. मैम हमें जब भी मैं 5th में पढ़ रही थी तभी हमें प्लांट सेल का स्ट्रक्चर सिखाया था, तो उसमें एक और पिगमेंट था जो कलरलेस होता है, पर मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा. One second.
Ma'am, हाँ जी, ma'am, can you hear me now? yes, I can hear you. Yes, ma'am. I think there was something wrong with my mic, ma'am. I just wanted to test that you were able to hear me, ma'am. I was doing like that for 10 times. So. Okay, okay, no problem. अच्छा, तो who was asking about कि colorless pigment होता है एक? Ma'am, I was asking. हाँ, तो देखो there are other pigments also, जैसे anthocyanin भी होता है, ठीक है? Anthocyanin is also a pigment. So you know sometimes these pigments combine together to produce a colorless effect also. ठीक है? देखो you know it is not really always necessary कि कोई एक तरह का पिगमेंट ही सारा का सारा कलर देगा. कई बार ये जो पिगमेंट्स है ये आपस में कंबाइन होते हैं. जैसे आप बनाते हो ना डिफरेंट कलर्स, रेड, ग्रीन, येलो को मिक्स कर करके ब्लू भी ऐड कर देते हो, डिफरेंट कलर्स बनाते हो. सिमिलरली ये पिगमेंट्स भी आपस में इकट्ठे होकर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बना सकते हैं. ठीक है? मैम जस्ट वन थिंग आई वांटेड टू से कि लाइक हर पिगमेंट जो अभी ये एक्स्ट्रा पिगमेंट्स आए हैं उनके तो अलग अलग लाइक वर्क्स भी होंगे. आई मीन वर्क इन द सेंस कि लाइक वो क्या कौन सा कलर प्रोड्यूस करते हैं. सो कैन यू जस्ट राइट दैट डाउन टू सो दैट वी कैन राइट दैट डाउन ऑल्सो. One second. Yes, ma'am. I was also saying that. Yes, Namita, I read your message also. मैं अभी लिख देती हूँ. ठीक है? ठीक है? नोट डाउन कर लिया? Yes ma'am, done. Yes, ma'am. Can you Yes, ma'am. wait? Is Namit saying something? Namit, are you saying something? Yes, ma'am. Now I'm done. Okay, okay. Now see, ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके, कई बार ये क्वेश्चन क्विजेस वगैरह में भी आ जाता है कि अगर कोई पर्सन फास्ट कर रहा है, प्रोलॉन्ज्ड फास्टिंग मतलब कि बहुत टाइम तक फास्टिंग करते हैं. जैसे आप देखते होंगे ना ये हंगर स्ट्राइक्स जब होती हैं तो हंगर स्ट्राइक में लोग क्या करते हैं, दे आर ऑन प्रोलॉन्ज्ड फास्टिंग कि बहुत टाइम तक हम कुछ नहीं खाएंगे. सो इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग इज कि बहुत देर तक या बहुत दिनों तक आपकी बॉडी के अंदर कोई फूड आइटम नहीं जा रहा है, तो आपकी बॉडी कैसे सर्वाइव करे? हाउ आर यू एबल टू डिराइव एनर्जी, राइट? सो उस केसेस में क्या होता है कि सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो यूज होंगे. ठीक है? कार्बोहाइड्रेट्स के बाद फिर फैट्स यूज होते हैं, राइट? एंड देन अगर फैट्स भी खत्म हो गए सारे, देन फाइनली इट कम्स डाउन टू प्रोटीन्स, राइट? सो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, then fats, and finally protein. ठीक है? ये कितने बच्चों ने सही किया क्वेश्चन 30th वाला? बताओ कितने बच्चों ने ये ठीक किया था? हाउ मेनी ऑफ यू डिड इट ऑल करेक्ट?
या कितनों का रॉन्ग था? Ma'am, हाँ बोलो। ma'am, I think the last Socrates that we did was the Socrates with 83 questions. I don't think Yes, this ma'am. was No, the 87. Socrates. Yes, 87 ma'am. questions. Yes, ma'am. There wasn't any quiz on this topic. ओके ओके, डोंट वरी। तो इट्स गुड कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? Okay, ma'am. आप नोट डाउन कर लो, ठीक है? राइट, Ma'am, नोट दिस डाउन, what दिस इज is इम्पोर्टेंट। prolonged fasting? Ma'am, what is prolonged fasting? लॉन्च फास्टिंग का मतलब होता है नमित कि जब आप बहुत टाइम तक फास्ट रखते ही रहो, ठीक है? आपका फास्ट जो बहुत दिनों तक चलता रहे। तो जब ये हंगर स्ट्राइक होती है ना, हंगर स्ट्राइक के अंदर होता है प्रोलॉन्ज्ड फास्टिंग, कि बहुत दिनों तक कुछ नहीं खाना पीना। Ma'am, is it for plants or humans? आप बोलो नमित, आई एम लिसनिंग। Ma'am, is it for plants or humans? फॉर ह्यूमंस। प्लांट्स तो फास्टिंग कर ही नहीं सकते, नहीं, Yes, ह्यूमंस ma'am. के लिए होता है। प्लांट्स थोड़ी ना फास्ट कभी कोई प्लांट नवरात्रों का फास्ट रख रहा है, No, ma'am. नहीं ना, इट इज फॉर ह्यूमंस ओनली। Okay, ma'am. Ma'am, I also have a doubt, ma'am. Is it for animals also? Because they also like somewhat not get food. देखो इट हैपेंस, देखो उनमें फास्टिंग तो नहीं होती आज सच कि यू नो द एनिमल थिंग्स कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मैं मम्मी पापा से नाराज हूँ तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है? बट येस इट माइट हैपन कि कई बार अगर किसी एनिमल को चोट लग गई और वो उठ नहीं पा रहे अपनी जगह से खाना ढूंढने के लिए, तो उस केस में यही होगा कि जब तक वो एनिमल थोड़ा चलने के लायक नहीं हो जाता, थोड़ा सा उस कंडीशन में नहीं आता कि वो घूम पाए और खाना ढूंढ पाए, तब तक उसकी बॉडी के अंदर भी यही होगा। जो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट्स थे वो यूज होंगे, फिर फैट्स यूज होंगे एंड देन फाइनली प्रोटीन्स यूज होंगे। Okay, ma'am. Ma'am, आप बोलो। ma'am, what will happen if carbohydrates, fats, and proteins will all get used up, ma'am? Then you know the body will start to you know weaken। बॉडी बहुत वीक होती जाएगी क्योंकि प्रोटीन्स क्या करते हैं, वो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जो आपकी बॉडी की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है, द मसल्स एंड यू नो ऑल द फ्लैश, वो सब प्रोटीन से बना हुआ है। तो अगर वो खत्म होने लग जाएगा तो क्या होगा, द पर्सन स्टार्ट्स टू बिकम वेरी वेरी वीक एंड थिन। तो जब लोग डाइटिंग करते हैं, सुना है ना आपने डाइटिंग करना, तो डाइटिंग में वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा खाना नहीं जाने दे रहे। तो बॉडी क्या करती है कि कार्बोहाइड्रेट्स यूज करती है, फैट्स यूज करती है और फिर प्रोटीन। इसीलिए लोग पतले हो जाते हैं क्योंकि वो जो फ्लैश था वो कम हो गया, ठीक है? तभी डाइटिंग की वजह से लोग पतले होते हैं। हाउएवर यू नो द डॉक्टर्स हैव सेड कि डाइटिंग से पतले होना जो होता है उसे हम पतले होना नहीं बोलते, हम उसे बोलते हैं वीक होना, ठीक है? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गेटिंग स्लिम एंड गेटिंग वीक। डन? समझ आ गई बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सैफरॉन है वो कौन से पार्ट से बना हुआ है? सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सैफरॉन। इसे हिंदी में हम बोलते हैं दिस, सैफरॉन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? केसर। Ma'am, केसर। हाँ, केसर क्या होती है, प्लांट का कौन सा पार्ट होती है बोटानिकली? ओके, सो जानवी सेज इट्स स्टेम। व्हाट अबाउट द अदर्स? बाकी बच्चे बताओ। Ma'am, I think it is flower. Ma'am, I think flower. ओके,
So those of you who say it's flower, you people are right. ठीक है, ये जो saffron होता है ये flower होता है. ठीक है, it's the flower of the plant. Understood? Yes, ma'am, understood. No, I'm not speaking, Janvi. Can you explain question number 30 again? I was disconnected. Okay. So question number 30 में हमने बात की कि if a person is fasting, अगर कोई बहुत टाइम तक फास्ट रखता है तो उसके बॉडी में फूड तो जा नहीं रहा टू गिव देम एनर्जी, तो फिर उस पर्सन को एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो बॉडी क्या करती है, पहले बॉडी के अंदर अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करेगी एनर्जी के लिए, फिर जब सारे कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो गए तो फैट्स को यूज करेगी, जब फैट्स भी खत्म हो जाते हैं तो फाइनली फिर बॉडी प्रोटीन को यूज करने लगती है. ठीक है, और जब ये वाली स्टेज आ जाती है कि बॉडी प्रोटीन को यूज कर रही है तो धीरे धीरे द पर्सन स्टार्ट्स बिकमिंग वेरी वेरी थिन एंड वेरी वेरी वीक. ठीक है, और फिर उसके अंदर ज्यादा एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी बच नहीं जाती. ओके, Yes, ma'am. okay. Now what about the 38th question? Variety and quantity of food we eat depends on. इसका आंसर मुझे तारुष बताएगा. Ma'am, variety and quantity of food depends on ma'am food availability. Okay, what about the others? Ma'am, job. Okay, job also. ठीक है. So आपका आंसर Ma'am. वाला होगा. हाँ, आप नहीं बोलो. Ma'am, all of these. Yes. So the correct answer should be all of these. क्योंकि इसके अंदर देखो, एक तो सबसे पहली बात ये है कि हमारी बॉडी की एज कैसे है. क्योंकि देखो, आपने देखा होगा ना, जब कोई छोटा बेबी होता है तो वो फूड कम खाएगा, राइट. उसकी डाइट कम होती है. जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो फिर वो ज्यादा खाने लगता है. छोटे होते हुए मे बी ही एट ओनली हाफ अ चपाती, अब वो बड़ा हुआ तो वो पूरी फुल चपाती खाता है, फिर और बड़ा हुआ तो 2 चपाती खाएगा. ठीक है, सेक्स का मतलब है मेल है या फीमेल. तो कई बार इट सो हैपेंस कि जो बॉयज होते हैं वो ज्यादा खाते हैं, गर्ल्स थोड़ा कम खाती हैं. ठीक है, क्योंकि बॉयज को ज्यादा भूख लगती होगी, गर्ल्स को थोड़ी कम लगती है. देन बिल्ड, यानी कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है. तो अगर कोई आदमी है जो बहुत ज्यादा मस्क्यूलर है, बहुत ज्यादा मसल्स बनाए हैं, तो वो ज्यादा खाएगा. अगर कोई नॉर्मल आदमी है तो वो कम खाएगा. एंड हेल्थ ऑल्सो, जैसे हेल्थ का ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समटाइम्स व्हेन यू आर नॉट वेरी गुड, आपकी तबीयत अगर थोड़ी सी खराब है, आपको फीवर है, तो आपको भूख नहीं लगती. Whereas जब आप ठीक होते हो, नॉर्मल होते हो, तो आपको ज्यादा भूख लगती है. तो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. जॉब भी बहुत जरूरी है. अब अगर आप देखो कि नमित इज अ पर्सन हु सिट्स इन हिज ऑफिस ऑल डे वर्किंग ऑन द कंप्यूटर. ठीक है, वो पूरा दिन एसी वाले ऑफिस में बैठ के काम करता है. और तारुष क्या करता है, वो पूरा दिन फैक्ट्री में सारे वर्कर्स को समझाता है उनका काम. पूरी फैक्ट्री में उसे घूमना पड़ता है. ही इज द फैक्ट्री मैनेजर. तो पूरा दिन घूम घूम के ही वर्क्स अराउंड एंड टेलिंग पीपल हाउ टू डू देयर वर्क. सो क्या होगा, दिन के एंड पे जब तारुष और नमित घर जाएंगे तो तारुष ज्यादा थका हुआ होगा, नमित इतना ज्यादा नहीं थकेगा क्योंकि वो कार में बैठ के ऑफिस गया था, कार में बैठ के घर आया. तारुष पूरा दिन घूम रहा था फैक्ट्री में. ठीक है, और फिर वो कैसे घर आया, वो मेट्रो से घर आ गया, राइट. सो तारुष विल ईट मोर फूड, नमित थोड़ा कम खाएगा. फिर रिलीजन और कल्चर,
अब अगर नमित जो है वो नॉन वेजिटेरियन है और तारुष कंप्लीटली वेजिटेरियन है, तो वो चिकन वगैरह नहीं खा सकता। whereas नमित विल से कि नहीं, मैं तो सब खा सकता हूँ, मैं फिश भी खाऊंगा, एग भी खाऊंगा, चिकन, मटन, राइट। एंड देन फूड अवेलेबिलिटी, अगर तारुष के घर के पास में फिशेस मिलती ही नहीं, तो तारुष खाएगा कैसे? बट नमित के घर के पास फिश मिलती है शॉप पे, तो वो जाएगा, खरीदेगा और खा लेगा। ठीक है, सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। ओके मैम। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो व्हाइट पोर्शन होता है कोकोनट के शेल के अंदर, वो क्या होता है? इज इट द स्टेम, द सीड, फ्रूट और वेजिटेबल? Ma'am, it is a fruit. Okay, does everybody agree with Namit? Ma'am, I think fruit only. What is coconut? Coconut है क्या वैसे पूरा का पूरा खुद? Ma'am, the coconut is a seed. Yes. जब कोकोनट खुद ही सीड है, तो उसके अंदर का सामान भी तो सीड ही होगा ना, ठीक है? Yes, ma'am. Right. So I think this worksheet is now over. या बचा हुआ है? Okay. This I think we've already done. ठीक है. Fruit with seed outside the fruit body is strawberry. Janvi is saying, "Ma'am, I can't hear you." बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? Ma'am, you are clearly audible. Okay, okay. Can somebody write in the chat box to Janvi? She will rejoin. I think she has left already. She'll join again then. Right. Now let us start with another chapter, which is fiber to fabric. ठीक है, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फाइबर टू फैब्रिक वाला। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, चैप्टर हेडिंग डाल दो। जानवी, अब आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, गुड। Ma'am, written. वन सेकंड। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स। ठीक है, नाउ यू सी देयर आर अ फ्यू टर्म्स सच एज यार्न एंड फाइबर। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि व्हाट इज अ यार्न एंड व्हाट इज अ फाइबर, और किस तरह से ये कंबाइन होकर फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, और फिर फैब्रिक से क्या बन जाते हैं? क्लोथ्स। ओके, सो नाउ वी हैव टू क्लासिफिकेशंस। हमारे पास दो तरह की क्लासिफिकेशंस हैं।
Fibers can be classified on the basis of where they are being obtained from. अगर वो plant से मिल रहा है तो plant fiber है. Natural, plant and animal fiber. Yes. And if we are getting it from animals तो हम उसे कहेंगे animal fiber. ठीक है? And both of these, of course, हाँ जी. Ma'am, it can also be Yes, synthetic yes. fiber. चलो एक काम करते हैं, let's draw quick flow chart. So, two types of fiber are there. Natural and man-made. Natural and man-made या synthetic. Right? हम natural वालों के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे इस चैप्टर में, okay? Rather than going further in details about synthetic ones. So natural वाले जो होते हैं, they are of two types. एक होते हैं plant fiber and the other one the animal fiber. ठीक है, जल्दी से फ्लो चार्ट ड्रॉ करो, then we'll proceed further. Drawn. Drawn, very good. Ma'am, please 2 minutes, ma'am. Can you scroll up? Okay. Ma'am, just 2 more minutes. Okay, कर लो. Done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So देखो, पहले हम करेंगे प्लांट वाले की बात, ठीक है? प्लांट के अंदर हम क्या क्या यूज करते हैं? जब हम फ्रूट का फाइबर यूज करते हैं, इट इज नोन एज कॉयर, राइट? कहाँ पे आप यूज करते हो फ्रूट का फाइबर? Tell me, can anybody tell me an example of fruit fiber? I mean gunny bag. Okay. Ma'am, mattresses? Okay. Right. हम जो Carpet. Ma'am, can you please repeat the question? yes, the question is कि आप फ्रूट का जो कॉयर होता है वो कहाँ यूज करते हो? इसका एग्जाम्पल है कोकोनट का जो हस्क होता है, ठीक है? कोकोनट का हस्क आप यूज करते हो ना, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग. कोकोनट का हस्क इज कॉयर. फिर हम सीड भी यूज करते हैं, सीड से फाइबर. सो व्हाट कुड बी द एग्जाम्पल ऑफ सीड फाइबर? ये देखो कॉटन, ठीक है? कॉटन सीड से आता है. कैपक ऑल्सो. देन बास्ट. बास्ट इज जो स्टेम के अंदर से या ऊपर से जो फाइबर आता है, हम उसे बास्ट बोलते हैं, ठीक है? सो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है जूट, फ्लैक्स, हेम्प, रामी. इन सब से हम रोप्स बनाते हैं, ठीक है? एंड देन लीफ. लीफ के अंदर द मनीला प्लांट, द सी सिल्क, ऑल दीज आर यूज्ड फ्रॉम लीफ. ओके, दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीफ. हम चैप्टर में किस तरह से प्रोसीड करेंगे? पहले हम बात करेंगे सारे प्लांट फाइबर्स की, फिर हम आ जाएंगे
एनिमल फाइबर्स पर, ठीक है। एनिमल फाइबर्स में देखो सिल्क इज देयर, जो हम सिल्क मॉथ से ऑब्टेन करते हैं, वूल हमें शीप से मिलती है, ऑल्सो वी यूज हेयर ऑफ अदर एनिमल्स, जैसे लामा हेयर यूज करते हैं, कैमल हेयर यूज करते हैं, इवन याक जो होता है ना एनिमल, उसके भी हेयर यूज किए जाते हैं। बट एट द सेम टाइम, यस गोट ऑल्सो, सो यू नो एट द सेम टाइम मैं ऐसे एनिमल्स यूज करूंगी जिनकी हेयर ग्रोथ बहुत ही ज्यादा हेवी और थिक है, और देखो इतना ज्यादा हेयर ग्रोथ नहीं होता या इतना फाइबर नहीं निकलता कि बहुत सारा फैब्रिक बन जाए, ठीक है। तो you know these fibers or these fabrics which are obtained from the hair of animals, these are expensive also. Ma'am, can you please scroll up a bit? What? Ma'am, can you please scroll up? 1 second. ऊपर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है सिर्फ, ठीक है। यू जस्ट हैव टू ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट। Okay, ma'am. Mom, done. Ma'am, please wait. Ma'am, give us just 2 more minutes. ओके नो प्रॉब्लम, आराम से ड्रॉ कर लो, ठीक है, कुछ मिस मत करना, इट्स ऑल इम्पोर्टेंट, सो ड्रॉ इट वेरी नीटली एंड जस्ट ड्रॉ इट यू नो विद अ लॉट ऑफ पेशेंस। Ma'am, drawn. Okay, so has everybody drawn? Shall we proceed? Ma'am, please wait. Yes, ma'am. And plus, ma'am, can you just share this photo in the chat as well, in the like group chat as well once? Why? What happened? No, ma'am. Just so I spot any like mistakes, and plus, if you scroll up a little bit so that I can complete it afterwards also. आप कर लो draw, that's no issue. ठीक है, Okay, don't okay, worry. ma'am. Okay, ma'am. Fine. Yes, ma'am, I've written.
Mom, can you Done. scroll up a little bit, please? Ma'am, written. Okay, no problem. Let others also complete and then we shall move on. Okay, ma'am. I'm done. Okay. So see, this is how cotton fields look like जब पूरा जो cotton ball होता है वो develop हो जाती है, ठीक है? And then what do farmers do? They will collect this cotton ball और फिर इनसे वो fibers बनाएंगे. ये देखो, इस तरह से इन्हें यूज करके फाइबर बनाया जाता है, ठीक है? फिर जब फाइबर जो होता है, देखो दिस इज अ फाइबर, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. जब ऐसे बहुत सारे फाइबर में एक साथ मिला देती हूँ लाइक दिस बिकम्स अ यार्न, ठीक है? ये एक यार्न है और फिर जब मैं ऐसे बहुत सारे यार्न्स आपस में मिला दूंगी तो मेरे पास एक फैब्रिक बन जाएगा which would look something like this. ठीक है? और ये हर क्लॉथ के साथ में होता है, चाहे वो सिल्क हो, वूल हो, कॉटन हो, कोई भी हो, ठीक है? फाइबर या फैब्रिक बनाने का तरीका यही रहता है, राइट? ये देखो, कैन somebody tell me the name of this device? Ma'am, can you ma'am number? Spinning wheel. Ma'am, can I? Spinning wheel, also known as Ma'am, chakra. Ma'am, takli. Yes. Spindle. So Ma'am, charka. हाँ, गुड, चरखा, राइट? अभी आगे हम देखते हैं कि इसे और क्या बोलते हैं, ठीक है? दिस इज यूज्ड टू क्रिएट थ्रेड्स ऑफ द पर्टिकुलर फैब्रिक. सी, दिस इज नोन एज अ टकली और अ स्पिंडल, ठीक है? ये जो I said this only. यस, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है स्पिंडल, हम इसे टकली भी बोलते हैं, ओके? एंड सी किस तरह से कॉटन के साथ में, देखो, शी इज क्रिएटिंग अ थ्रेड. कैन यू सी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पोक ट्री, ठीक है? इनका भी जो फ्लावर है या फ्रूट है उसमें भी देखो कॉटन जैसा ही फाइबर आता है, ठीक है? अभी आपने लिखा है ना फ्लावर वाले में कॉटन के नीचे के पोक, तो ये वो ट्री है. Okay. Now, what are the features और advantages of these fibers? ये जो कॉटन और किपॉक है कि इनका जो फाइबर होता है या फिर जो इनसे फैब्रिक मुझे मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा लाइट होगा और बहुत ही ज्यादा फ्लफी होगा, ठीक है? फ्लफी से व्हाट दे मीन टू से इसकी जो पोर्स होते हैं क्लॉथ के बीच में वो बड़े होते हैं. सो यू मस्ट हैव हर्ड कि गर्मियों में जब कभी आप कोई ऐसा क्लॉथ पहनते हो which is synthetic, तो मम्मा पापा क्या बोलते हैं कि कॉटन का कुछ पहनो, इसमें गर्मी लगेगी, पसीना नहीं सूखेगा, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं ना, इसके बीच में जो फाइबर्स हैं या जो यार्न है उसमें स्पेस काफी ज्यादा है, ऐसे करके, ठीक है? सो व्हाट हैपेंस विद दिस स्पेस इज कि व्हेन यू फील हॉट एंड यू आर स्वेटिंग, तो वो स्वेट बहुत इजीली इवेपोरेट हो जाता है इन होल्स में से, ठीक है? इसीलिए कॉटन के कपड़ों में गर्मी कम लगती है, राइट? Whereas जब आप सिंथेटिक क्लॉथ पहनते हो तो सिंथेटिक क्लॉथ इज मेड वेरी वेरी फाइनली, इस तरह से होता है वो. सो द स्पेसेस इन बिटवीन आर वेरी वेरी स्मॉल, और इसीलिए जब आप सिंथेटिक पहनते हो तो आपकी जो स्वेटिंग हो रही होती है आपको, द स्वेट डज नॉट इवेपोरेट वेरी क्विकली, वो बहुत जल्दी से ड्राई नहीं होता, ठीक है? दैट इज व्हाई these natural cotton clothes are preferred over synthetic ones, particularly during summers. Okay? Excuse me, ma'am. I am having fiber, ma'am. Can I show?
How? So, okay. ठीक है. Now what is this? These are jute bags. ठीक है. तो जूट जो होता है, the fabric और the fiber is very very strong. जो उसका structural composition है वो बहुत ज्यादा strong है. ठीक है. So the fiber has a lot of strength. इसीलिए जूट, फ्लेक्स वगैरह इन्हें यूज किया जाता है रोप्स बनाने के लिए. ठीक है. रोप्स में आपने देखा ना मूवीज में कितनी मोटी मोटी रोप्स बनती है इनसे, एंड दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. कोई पर्सन उनके थ्रू क्लाइंब भी कर सकता है क्योंकि ये फाइबर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, आसानी से नहीं टूटते. इसीलिए इनसे हम बैग्स भी बनाते हैं ताकि आप उसके अंदर अगर कुछ हैवी सामान डाल दो या बहुत सारा सामान डाल दो तो ये सारा का सारा सामान इजीली पकड़ पाएंगे, जल्दी से टूटेंगे नहीं. Ma'am, Okay. but if you like put it in boiling water and then like put it in like a dark and a very dry space for a long time, it'll break in an instant. Yes, because that is जब आप किसी भी ड्राइड चीज को जो स्ट्रॉन्ग है उसे आप वाटर में डालोगे, इट स्टार्ट्स रॉटिंग. ठीक है. वो रॉट होने लग जाएगा. That's what, yeah. ड्यू टू डिकम्पोजिशन एंड रॉटिंग इट बिकम्स वेरी वेरी वीक एंड थिन. तो वो जल्दी से टूट भी जाएगा. ओके. नाउ सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे क्या कर रहे हैं फार्मर्स, इन्होंने ये जूट के स्टेम्स लिए और इसे पानी में डाल के छोड़ देंगे. ठीक है. दिस प्रोसेस इज नोन एज रेटिंग. Okay, what is it known as? Retting. Retting के अंदर the farmers depend solely on the microorganisms for eating away the excess fiber or the excess cellulose. ठीक है. Ma'am, can you just write the definition of retting once? Yes, 1 second Radhya, let me speak. मैं लिखूंगी, don't worry. मैं अभी बात ही तो कर रही हूँ सिर्फ. Okay, ma'am. तो रेटिंग के अंदर क्या होता है कि देखो पानी है, पानी में बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं और प्लांट के अंदर बहुत सारा सेल्यूलोज होता है. राइट. सो व्हाट हैपेंस, जिसकी जो फार्मर्स होते हैं वो इसे पानी के अंदर लीव कर देते हैं और फिर क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारा एक्सेस सेल्यूलोज डाइजेस्ट कर लेंगे. ठीक है. इसकी वजह से व्हेन द एक्सेस सेल्यूलोज इज रिमूव्ड from the plant or from the stem, what is left of the stem is all the fiber. जो हमें मेन फाइबर चाहिए था वही बच जाता है सिर्फ. ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेरी हैवी मशीनरी और बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने के बजाय फार्मर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं कि हमारा आधा काम वो कर देंगे. ठीक है. इसीलिए बोलते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे बहुत काम आते हैं. तो रेटिंग इज अ प्रोसेस, इट्स एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस जहाँ पे हमारी हेल्प कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. राइट. Excuse me, ma'am, I have a doubt that the fiber that is like on an apple, after I have left the apple for some minutes, so it has some of the yellowish thing. It is also called fiber, ma'am. What is that? एप्पल के अंदर Yes, ma'am, a yellowish thing appears after some minutes. We cut it you're like. telling me कि जो अंदर का व्हाइट पार्ट होता है वो थोड़ी देर बाद येलो हो जाता है. Yes, ma'am. हाँ. See, that is because of some of the gases that are being released from the apple. Okay, जो sugars होती है एप्पल के अंदर present, वो there's some sort of chemical reaction going on जिसकी वजह से वो जो कलर है वो चेंज हो जाता है. ठीक है. The color starts changing. पहले येलो होता है, फिर धीरे धीरे थोड़ा ऑरेंज होगा और फिर बहुत देर तक ऐसे पड़ा रहेगा तो ब्राउन हो जाएगा. राइट. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, so let us write about retting.
Ma'am, written. Written? Okay. Ma'am, what you have written after behind the in the last line? Behind the bast fiber bundles. Okay, ma'am. Ma'am, written. Okay. Everyone done? Ma'am, please wait for 1 minute. Okay, okay, no problem. लिख लो. Mom, what is the meaning of bast fiber? See, bast fiber जो होता है, that is the major fiber. ठीक है. Bast word is generally used for the fiber which is present inside the plant. देखो क्या होता है कि जो ट्री की स्टेम होती है, it is something like this. या हम बात करें अगर ट्रंक की, ये बाहर का मेजर पोर्शन है, दिस इज ऑल बार्क, राइट. ये अंदर जो टिश्यू होता है ना, दिस टिश्यू राइट हियर, दिस इज नोन एज द बास्ट. ठीक है. और यही हमारे काम का है, राइट. Okay. तो फार्मर्स रेटिंग में क्या करते हैं, दे वांट कि ये जो बाहर की लेयर है ये सारी हट जाए, ताकि हमारे पास सिर्फ ये पोर्शन बचे. Okay, we can take a mango in example also. We don't want the outer covering, we just want the inner covering. Yes, you can say that. I'm Ma'am, written. when the fibers are inside the stems, do they have any functions for the plant? What is the question? Ma'am, when the fibers are inside the stems in between, do they have some function for the plant? Yes, they do have a very important function. जब रूट्स पानी अब्सॉर्ब करते हैं तो वो ऊपर लीव्स तक और ट्रंक तक कैसे जाता है, इन फाइबर्स के थ्रू जाता है. ठीक है. और जब लीव्स खाना बनाते हैं तो वो पूरे प्लांट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट इज ऑल्सो थ्रू दीज फाइबर्स. तो आप इस तरह से मानो कि जैसे आपके घर में आपने देखा होगा ना, आप अपार्टमेंट में रहते हो तो मीटर्स नीचे हैं और वो वायरिंग सारी आपके घर में ऊपर तक आ रही है, स्विचेस तक, राइट. तो ये जो फाइबर्स हैं ये एक तरह की वायर का काम कर रहे हैं, रूट से लेके लीव्स तक, लीव्स से ब्रांचेस तक, ट्रंक तक, ऐसे करके नेटवर्क की तरह फैले हुए. Okay, ma'am. Noted? Yes, ma'am. Yes, mom. राइट. तो यहाँ पे देखो एक्सेस ऊपर की कवरिंग हटा दी जाती है. सी, ये सारी कवरिंग ऊपर की हटा दी और बीच में से जो मेजर बंडल था, फाइबर बंडल, वो हमारे पास आ गया.
Okay, so Janvi is asking, ma'am, these microorganisms are present in the water? Yes, microorganisms water में होते हैं. देखो बेसिकली क्या कर रहे हैं, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो क्या कर रहे हैं वो कि पानी के अंदर उन ब्रांचेस को छोड़ देते हैं ताकि वो सड़ जाए. ठीक है, जो ऊपर का सारा ग्रीन पोर्शन है वो सारा सड़ के हट जाएगा. ठीक है, दैट इज डीकॉम्पोजिशन. ओके, तो ये तो आपने देखा है ना, पानी के अंदर जब आप किसी भी चीज को रखते हो उसके ऊपर का जो सारा कवरिंग होती है वो सॉफ्ट होके हट जाती है ना. देखी है ना ये चीज. Yes, ma'am. दैट इज बिकॉज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स ओनली. ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमेशा हवा में भी प्रेजेंट है और अंडर वाटर में भी है. ओके, you know, you can also do a very good thing with water and leaves. क्राफ्ट की तरह यूज होता है. आई थिंक आपने सुना भी होगा. तो क्या करो कि एक लीफ लो, बहुत सुंदर सी शेप का या कोई भी सिंपल लीफ जो भी आपको पसंद आए, उसको वाटर में भिगो के रख दो. ठीक है, एंड लीव इट देयर फॉर 15-20 डेज. थोड़े दिनों बाद जब उसे निकालोगे ना तो क्या होगा कि उसके ऊपर का सारा जो ग्रीन पोर्शन है ना वो बहुत बहुत सॉफ्ट हो गया होगा. तो क्या करो, एक पुराना ब्रश लो, बहुत पुराना कोई टूथब्रश अगर आपके पास पड़ा हुआ हो या कोई पेंटिंग ब्रश हो, और धीरे धीरे उस ब्रश को उस गीले गीले लीफ पे मारो. यू विल सी कि सारा ग्रीन पार्ट हट जाएगा और आपके पास जो बचेगा ना वो ऐसा लगेगा कि लीफ जो है वो नेट का बना हुआ है. ठीक है, दैट लीफ विल लुक लाइक इट इज मेड अप ऑफ नेट. ट्रांसपेरेंट हो जाएगा बिल्कुल. Ma'am, can you please repeat the starting part you have said? स्टार्टिंग इज कि आप लीफ को वाटर में सोक करके रख दो. ठीक है, कोई भी लीफ लो, उसे पानी में भिगो के रख दो. ठीक है, तो क्या होगा कि ऊपर की जितनी भी ग्रीनरी थी, सारा ग्रीन पार्ट, क्लोरोफिल वगैरह, वो सब हट जाएगा. ठीक है, 15-20 डेज के बाद. Ma'am, do we बाकी का have to आप use vegetative leaf or like normal green leaf? नॉर्मल ग्रीन लीव्स. ठीक है, जैसे बाहर बहुत सारे लीव्स होते हैं ना, कोई भी एक ब्रेक करो ट्री पे से, प्लक करो और उसे पानी में सोक कर दो. फिर उसके ऊपर से जब आप ऐसे थोड़ा थोड़ा ब्रश मारोगे तो ऐसे करके ना नेट बच जाएगी पूरी की पूरी आपके पास. बहुत बहुत सुंदर लगता है वो. उसके ऊपर आप ग्लिटर्स से कुछ भी बनाओ या फिर पेंट करके कुछ भी बनाओ, इट लुक्स वेरी प्रिटी. व्हेन आई वाज इन 6th और 7th क्लास तो मेरा हॉलीडे होमवर्क था ये साइंस में. आई हैड टू रिमूव ऑल द क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ, ऑल द सेल्स. ठीक है, और ये जो अंदर नेट बच जाएगी ना आपके पास, ये नेट पता है क्या है? दिस इज द नेटवर्क जो लीफ तक सारा पानी सप्लाई कर रहा है और लीफ से सारा फूड लेके जा रहा है. दिस इज ऑल द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स व्हिच यू विल सी. ठीक है, Ma'am, एंड this दैट लुक्स वेरी वेरी प्रिटी. Ma'am, this can work on any leaf, right? यस यस, दिस विल वर्क ऑन एनी लीफ. ठीक है, करके देखना. ठीक है, लेट्स डू वन थिंग. छुट्टियां चल रही है ना, करके देखो. आज लीव सोक कर दो और उसको भूल जाओ रख के 15-20 डेज के लिए. ठीक है, छेड़ना नहीं है उसे. फिर हम 20 डेज के बाद उसे निकालेंगे, उसे क्लीन करेंगे. ठीक है, एंड देन वी विल ड्रॉ समथिंग ऑन इट. आप ग्लिटर्स से कुछ भी बनाओ या फिर यू नो आप उसके ऊपर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो और उसे घर पे लगाओ. वो बहुत सुंदर लगता है, ऐसे लगता है कोई आर्ट पीस है. Ma'am, so will it like dry or after if you want to hang it like a art piece or Yes, something? yes, it will dry off. आपके पास ना ऐसे बचेगा कि जैसे नेट से बना हुआ है वो लीफ. ओके, वो ड्राई हो जाएगा और वो काफी मतलब स्टिफ भी हो जाएगा. ठीक है, रिजिड कड़क सा हो जाता है वो. Excuse me, ma'am, do we have to use the old brush only or we can like use the new one, or I am having like some months or years back one, so I can use that one. No, I am telling you for using an old brush because जब आप उसके ऊपर से वो ग्रीन पार्ट हटाओगे तो आप वो ओल्ड वाले ब्रश से ही हटाओगे ना, नया ब्रश मत गंदा करो. ओके, Avni is asking how long does this process take? So she is asking about the retting process. कि retting process कितने टाइम में होता है? So normally you know it takes about 20-30 days. इतना टाइम तक वो भिगो के रखते हैं उसे वाटर के अंदर so that all the cellular material is washed off. So ma'am, that leaf part of the leaf, that green part of the leaf, we can refer that as the chlorophyll. Yes, yes, you can call it the cells and the chlorophyll. ठीक है, आप उसके ऊपर से सारे cells remove कर रहे हो. Okay. Now see, and this yellow leaf. हाँ, कोई भी कलर का लीफ यूज कर सकते हो आप. ठीक है, you can use any leaf, any color. Okay, ma'am. Thank you. Now see, after retting, what you are left with is this fiber. ठीक है, देख रहे हो, और ये देखने में ही लग रहा है ना आपको काफी strong fiber जैसा, और ये टच करने में भी काफी रफ होता है, right? Yes, ma'am.
एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि इन्हें फैक्ट्री में ले जाया जाता है और उनसे फिर फाइबर्स बना दिए जाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। ये देखो, दीज आर दी हेम्प प्लांट्स। हेम्प प्लांट से भी हम जूट जैसा ही फाइबर बनता है, ठीक है। दीज फ्लैक्स, हेम्प और हमारा ये जूट, इन सबके फाइबर्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ठीक है। चले आगे। Yes, ma'am. ये देखो, सो जब हम उसको पानी में भिगो के रख रहे हैं, हम बेसिकली ये सारा पोर्शन जो है हटा रहे हैं, ठीक है, सो दैट हमें ये मिल पाए। एंड दीज आर द वेरियस यूजेस ऑफ जूट, हेम्प, फ्लेक्स। इन्हें हम क्लॉथ में यूज करते हैं, इनके बैग्स बनाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके पास भी कुछ जूट के क्लॉथ्स होंगे, बट यू Yes, कैन नॉट ma'am. ऑब्वियसली वेयर देम इन समर्स। आप उन्हें विंटर्स में पहन सकते हो, क्योंकि जो जूट होता है इट इज अ वेरी थिक स्टफ, ठीक है, उसका फैब्रिक काफी थिक होता है, तो आप उसे विंटर्स में वेयर कर सकते हो, या फिर यू कैन वेयर इट इन कोल्डर एरियाज, की कोई ठंड वाली जगह है वहां पे, राइट। क्योंकि ये जो फाइबर है इट इज अ वेरी क्लोजली वोवन फाइबर, बहुत पास पास होता है, तो ये सारी की सारी जो हीट है उसे ट्रैप कर लेगा, ओके। ये देखो, दिस इज Ma'am, द, what is the lining? हाँ अभी बताते हैं। देखो, लाइनन जो होता है दैट इज यू नो सिंथेटिक फाइबर्स। जब हम सिंथेटिक फाइबर्स की बात करेंगे तो वी विल सी कि ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं दीज आर मेड यूजिंग अ नेचुरल फाइबर प्लस सम केमिकल्स, ताकि उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इम्प्रूव हो जाए, ठीक है, वो और ज्यादा बेटर हो जाए, अपग्रेडेड, ठीक है। तो लाइनन इज अ सिंथेटिक फाइबर। उसमें हम क्या करते हैं कि ये फ्लैक्स को यूज करते हैं अलॉन्ग विथ सम केमिकल्स, ठीक है, और इन दोनों को मिलाने के बाद हमें लाइनन मिल जाता है। Okay, ma'am. Ma'am, can you please write down that? अभी when we will go on further to discuss synthetic fibers, तब मैं लिखूंगी वो चीज, ठीक है। अभी I'm just telling you. Okay, ma'am. Okay, तो ये जो rating है देखो, how they are doing rating of all the stem derived fibers, ठीक है। जितने भी stem वाले fibers हैं उन सब में हमें rating करनी ही पड़ती है, ताकि ऊपर का ये जो cellular region है ये हटा सकें। तो आप ये लाइन नोट डाउन कर लो, ठीक है। Ma'am, written. मैम Ma'am, written. Ma'am, just a second. Ma'am, ma'am, I have a doubt that, ma'am, the fibers that has been written in the last, ma'am, it is FIBERS. And ma'am, in the previous fibers which I have seen in your previous slides, ma'am, it was written FIBRES. So ma'am, हाँ, which is yes, the yes. correct spelling? REBS, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपो हो गया। Okay, ma'am. Ma'am, written. Done? Okay. Ma'am, written.
आगे? Yes. ओके, कोकोनट फाइबर को क्या बोलते हैं? अभी बताया था ना मैम कोयर। इट्स नोन एज कोयर। ठीक है, और वो भी बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है क्योंकि देखो एक तो यू नो कोकोनट का हस्क बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत ज्यादा यू कैन से हाई क्वांटिटीज में अवेलेबल है। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि कमी है, बहुत सारे कोकोनट्स का हस्क अवेलेबल होता है, राइट? तो ये कहाँ पे यूज करते हैं हम जनरली? यू नो ब्रूम्स बनाने में, डोर मैट्स बनाने में, और आपने कई बार देखा होगा ये गुरुद्वारे और मंदिरों में होते हैं ना, ऐसे करके डोर मैट से होते हैं या फिर ये ऐसे कार्पेट्स होते हैं, राइट? एंड व्हेन यू वॉक ऑन देम यू फील कि कुछ ऐसे थोड़ा सा चुभने वाला भी होता है बीच में, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी थिक एंड स्ट्रॉन्ग। सो वहां सब जगहों पे हम कोकोनट हस्क को यूज कर रहे हैं। ठीक है, सी दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स। हाँ, सो जानवी इज सेइंग कि इट इज आल्सो वेरी फ्लेमेबल, है ना? तो यस इट इज फ्लेमेबल। देखो कोई भी जो ड्राई फैब्रिक है ना, when it comes in contact with fire वो flammable होगा ही होगा। this goes for cotton also, this goes for jute also, and this goes for coconut also। ठीक है, when you dry a material वो बहुत ज्यादा flammable हो जाता है क्योंकि उसके अंदर वाटर बचा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए जब आप कभी जैसे आप लोई जगाते हो जब, ठीक है ना, लोई मनाते हैं ना, तो लोई के टाइम पे क्या बोलते हैं मम्मा पापा या बाकी लोग कि सूखी लकड़ी लेना, वो अच्छे से जलेगी, राइट? क्यों? क्योंकि जब ड्राइड होती है वुड तो वो बहुत अच्छे से आग पकड़ती है। जब भी कोई चीज में मॉइस्चर होगा तो वो नहीं जलेगी। ये देखो, दिस इज सीसल। कैन यू लुक एट द लीव्स? दे आर सो बिग, है ना, बहुत बड़े बड़े लीव्स हैं। दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फैब्रिक फ्रॉम, राइट? मैम सीसल फैब्रिक है या इससे कोई फैब्रिक बनता है? इससे कोई फैब्रिक बनता है। ठीक है, दिस इज द प्लांट। ओके मैम। Ma'am, your voice cracked, ma'am. Which plant is this? ओके, कौन सी कैटेगरी में लिखा है आपने सीसल का एग्जांपल? गो बैक टू द फ्लो चार्ट एंड सी व्हिच। मैम लीफ। हाँ, लीफ यूज हो रहा है ना, एंड कैन यू सी, लुक एट द साइज ऑफ द लीव्स, राइट? दे आर वेरी वेरी बिग। They're very big. ये देखो, अब आपको उन्होंने पास से दिखाया। When they break the leaf, can you look at the fibers that are coming out? Yes, कितने ma'am. fine Yes, fibers। ma'am. White color. Yes, so these fibers will now be used for producing yarn and then fabric. ये देखो, ठीक है, जब ऊपर का सारा ग्रीन पार्ट हटा देते हैं तो ये बचता है अंदर। चलो, now we will talk about animal fibers। ठीक है, so what are the common examples of animal fiber? There is wool and there is silk। ज्यादातर आप इन्हीं के बारे में सुनते हो। ठीक है, Yes, wool ma'am. comes mainly from fleece of sheep। we get wool from goat also, yak also, some camels, some rabbits, llamas also। ठीक है, ये कुछ एनिमल्स है जिनसे हमें वूल मिलती है। और सिल्क आपको सिल्क वॉर्म या सिल्क मॉथ से मिलता है। एंड व्हेन यू नो सिल्क इज कल्चर्ड, हम उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, उस पूरे प्रोसेस को सेरीकल्चर बोला जाता है। आपने सुना भी होगा कि एक तरह का सिल्क नहीं है अवेलेबल। ठीक है, देयर आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क्स अवेलेबल। क्यों है डिफरेंट टाइप? क्योंकि अलग अलग सिल्क मॉथ से मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के सिल्क जो होते हैं वो अलग अलग मॉथ की वैरायटी से मिलते हैं, राइट? ये चीज आप नोट डाउन कर लो। कैन यू रिपीट? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी।
आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि आप ये नोट डाउन कर लो, ठीक है? बाकी हम आगे और करेंगे अच्छे से इसे। Excuse me, ma'am. हाँ जी। Ma'am, in the week schedule, ma'am, it was written that we have a test tomorrow at from 11 to 12:30, ma'am. Ma'am, on which topic, ma'am? Like nutrition and plants? ओके ओके, आपको भी टॉपिक नहीं बताया है टेस्ट का? हमें it is मैम written बताया nutrition है, in animals. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके ओके, हाँ तो इफ इट इज रिटन ओवर देयर, अगर आपको पता है तो फिर बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का होगा। Okay, ma'am. I was prepared for both, ma'am, but I didn't know which was coming, ma'am. नो प्रॉब्लम। Ma'am, written. Ma'am, written. Ma'am, written. सबने? चलो, सो लेट्स डू वन थिंग, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? अभी बिकॉज टाइम भी हो गया ना, सो वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास देन। थोड़ा सा Okay, रिवाइज रखना, ओके? सो इन द नेक्स्ट क्लास द फर्स्ट थिंग वी विल डू इज वी विल talk about whatever we have done today, right? Bye, Yes, ma'am. ma'am. Okay, bye bye. थैंक यू मैम। Bye, Bye, ma'am. जी ma'am. Can you please repeat, ma'am, what you have said? I said that you have to revise whatever we have done in today's class. No, ma'am, in the last thing you have said, like when we are going to come in next class. So we have to अच्छा, do, आई ma'am, सेड when कि the जब नेक्स्ट voice क्लास was होगी तो cracked. पहले हम डिस्कस करेंगे कि आज की क्लास में हमने क्या किया था। Bye, ma'am. Have a nice day. Okay, ma'am. Bye, ma'am. Have a nice day. Thank you for teaching.